What is the coefficient of x raised to 9 in the expansion of 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x cube and so on till 1 plus x raised to 100. Pause the video, try it on your own. The solution follows next. The easiest way to solve this question is perhaps just to count it manually. But let's see a concept before we get to the solution. If I talk about a simple expansion x plus y whole raised to square, I am sure आप सभी जानते होंगे ये क्या होता है, बट इसका एक पर्सपेक्टिव मैं आपको देना चाह रहा हूं कि एक्चुअली इसके मतलब क्या हो जाते हैं. Now x plus y the whole square is nothing but x plus y into x plus y. अब जब आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने बैठोगे, ठीक है, तो x स्क्वायर ना एक ही तरीके से बनेगा. There is only one way in which you can make x square, that is you take x from here and an x from here. एक ही तरीके से x square बन पाएगा. But when I talk about xy, I can make that in two ways. ठीक है, मैं xy दो तरीके से बना सकता हूं. पहले वाले टर्म से x लेते हैं और दूसरे वाले से y, या फिर दूसरे वाले टर्म से x लेते हैं और पहले वाले से y. So xy I can make in two ways and hence its coefficient will become 2. Similarly, y square you can make it in only one way and hence x plus y the whole square will become x square plus 2xy plus y square. ठीक है, so coefficient of any term is nothing but in how many ways can you get that term. तो ये सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर. तो अब सवाल ये पूछता है कि x raised to 9 का कोएफिशिएंट क्या होगा. अब सीधी सी बात है, that is nothing but the number of ways in which you can get x to the power 9. अब इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी हायर पावर्स होंगे they will be all useless for our purpose, है ना. तो अब जैसे ये वाला टर्म आ गया 1 plus x raised to 10 into 1 plus x raised to 11 and so on till 1 plus x raised to 100. अब यहां तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, by something you will get x raised to 10 से ज्यादा ही मिलेगा आपको अगर आप इसको किसी भी x से मल्टीप्लाई करोगे तो. So in my question यहां से जितने भी टर्म्स हैं they will be absolutely useless for our question. So I can actually reduce my question to find the coefficient of x raised to 9 in the expansion of I need to bother till 1 plus x raised to 9 only. ठीक है, हम सिर्फ वहीं तक जाएंगे, उसके बाद you can ignore the terms that follow because they will not contribute to x raised to 9. ठीक है, अच्छा, अब 9 बनाने के बहुत सारे तरीके हैं. अब बेसिकली देखो यहाँ पे आपके पास नंबर क्या है, 1 से लेके 2 3 4 से लेके 9 तक. तो एक्चुअली ये क्वेश्चन अब बन गया है नंबर थियरी का. सो यू हैव नंबर्स फ्रॉम 1 to 9. इन हाउ मेनी वेज कैन यू गेट 9 एज सम ऑफ 1 और मोर of these numbers. ठीक है, अच्छा, इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि sum of first 4 numbers, ठीक है, the sum of the first 4 smallest numbers will be 10. So you cannot get 9 as sum of 4 numbers. That is not possible at all. 4 नंबर अगर आप ऐड करोगे तो सम 9 आने ही नहीं वाला, बिकॉज सबसे छोटे 4 नंबर भी अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो भी 10 हो जा रहा है. So you can get 9 in 3 cases only, जहां पे पहले में you use only 1 number, दूसरे में you use 2 numbers, ठीक है, यहाँ पे आप एक ही नंबर यूज करोगे, यहाँ पे you will use 2 numbers, और तीसरे केस में you will use 3 numbers. Now, if we want to make 9 using just 1 number, that has to be 9 itself. ठीक है, in that case that number has to be 9 itself. तो एक ही केस बनेगा. अच्छा, 2 नंबर का समेशन अगर हमें 9 बनाना है, right? If we want sum of 2 numbers to be 9, now those could be 1 8 or 2 7 3 6 3 6 or 4 5. ठीक है, so in this case I'll get 4 ways. 4 तरीके से मैं 9 बना सकता था, है ना. जैसे आप एक्सपेंशन भी ऑब्जर्व करोगे, so if you multiply x raised to 4 with x raised to 5, है ना, तो आपका x raised to 9 बन जाएगा. अच्छा, इस क्वेश्चन में ये एक और अच्छी बात है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं x, ठीक है, और हायर पावर्स ऑफ x, उन सभी का कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें उसकी फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि टर्म्स का अलग से कोई कोएफिशिएंट आ सकता है क्या, बिकॉज ईच ऑफ x और x square और x cube has coefficient 1 only, so we can simply focus on number of ways only.
अच्छा, अब 3 नंबर की मदद से 9 बनाना है। अब लेट्स से 1 फिक्स कर देते हैं, ठीक है, 1 मैंने फिक्स कर दिया। तो अब कितना बचा? 8 बचा बनाने के लिए। तो 8 बनाने के तरीके कुड बी 2 6 और 3 5, ठीक है। 4 4 नहीं चलेगा, वी कैन नॉट यूज 4 4 बिकॉज अपने पास 4 एक ही है, ठीक है। पूरे टर्म में एक्सपेंशन के अंदर 4 1 प्लस x रेज टू 4 वाला एक ही टर्म है। सो दैट इज इट, 1 के साथ खत्म हो गया और कोई तरीका नहीं है। अब लेट्स से 2 यूज करते हैं। अब 2 यूज करेंगे तो क्या बच गया? अब बाकी का 2 टर्म मिला के 7 आना चाहिए अगर आपने 2 ले लिया। तो 7 बनाने का तरीका कितना होता? 1 6, बट एक्चुअली वो आप गिन चुके, राइट। 1 2 6 और 2 1 6 एक ही बात होगी, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो आप गिन चुके हो, ठीक है। सिमिलरली 7 बनाने के और तरीके आपके क्या हो सकते हैं? 2 5, बट आपके पास 2 तो एक ही है, तो अगेन फिर से आप 2 यूज नहीं कर सकते, तो एक ही वैलिड तरीका बचेगा, दैट इज 3 4, ठीक है। 3 4 और आगे और कोई तरीका ही नहीं आएगा, बिकॉज अगर आप 3 यूज करोगे तो आपको 6 बनाना है विदाउट यूजिंग 1 2 और 3 फॉर दैट मैटर, ठीक है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल अगेन। तो कितने तरीके आ गए? ये एक तरीका आया था, यहां से एक केस, यहां से 4 केस, यहां से 3 केस, तो टोटल हो गया 8 केसेस एंड हेंस योर आंसर विल बी 8। सो कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 9 in this case will become 8 because you can get 9 in 8 ways। 8 तरीके हैं x raised to 9 बनाने के in our question, ठीक है। So my name is Vipul Tyagi and this was Aristotle Olympiad series. I'll see you tomorrow with another question. Till then, take care. Goodbye.